Good morning, class ninth. This is our new chapter number 2 of history in unit 1, the outbreak of the revolution. And this is new topic and new class. And I already revised you economics chapter 1, geography chapter 1, and in polity chapter 1, which comes in PD test 1, and the chapter 1 of history is recently completed, and you all have done your homework and notes of chapter 1. So if you want to revise, then you have to revise yourself, revise all words and small question answers, and it's not hard. So I move to next topic, chapter number 2, the outbreak of the revolution. So I move to our further syllabus, okay, and make proper revision of your previous chapters, which comes in PD test 1, and gain good marks. Okay, the outbreak of the revolution. In this chapter we study or understand about the outbreaks. What are the incident, what are the main events that lead the French revolution in the France at that time, and these are some important dates to understand the basic incidents. With the passage of years and time, what are the incidents that makes a France totally a democratic country? Okay, Louis XVI had to increase taxes for reasons we have learned in the previous section. Yes, in the chapter number 1, we learn about the increases taxes policy of Louis XVI. How do you think he could give gone about doing this? Yes, as we think, or the people of France at the time think, how could have gone about doing this? In France of old regime, too, monarch did not have the power to impose taxes according to will alone. But in France, there was a system. If we talk about the time of Louis XVI or in the past of Louis XVI, there is no power to impose taxes without discussing to the peoples, or without discussing the estates, generals of the estates, because there are three estates and everyone has a general estate. So sometimes kings don't um, held a meeting to discussion about the increase of taxes. Okay, मतलब राजा कभी भी इन तीनों एस्टेट्स के जनरल को मिला के देख के कभी मीटिंग नहीं करता था, क्योंकि एक तो उसको अलोन पावर नहीं थी वो टैक्स इम्पोज कर सके. ही हैड टू कॉल अ मीटिंग ऑफ द एस्टेट जनरल्स, विच आई एक्सप्लेन यू फ्यू सेकेंड्स अगो. उसे एक एस्टेट जनरल्स की मीटिंग बुलानी होती थी, विच वुड हैड देन पास द प्रपोजल फॉर न्यू टैक्सेस. उसके बाद ही वो कुछ नए टैक्सेस को इम्पोज कर सकता है या क्रिएट कर सकता है. The Estate General was a policy body to which the three estates sent their representative. अब जो एस्टेट जनरल हैं वो एक पॉलिटिकल बॉडी है. पॉलिटिकल बॉडी सेंस एक चीफ है, और वो मिलता है फिर सीधा किंग को जाके. उसके बाद ही किंग कोई अपनी नई टैक्सेस के बारे में इनके कंसल्टेशन के बिना नहीं लगा सकता. तो जो स्टेट्स के पीपल हैं वो अपने इन रिप्रेजेंटेटिव को राजा के पास भेजा करते थे. हाउएवर द मोनार्क अलोन कुड डिसाइड व्हेन टू कॉल अ मीटिंग ऑफ दिस बॉडी. लेकिन ये जो मीटिंग का तरीका होता था ये राजा ही डिसाइड करता था. मोनार्क सेंस द सिस्टम ऑफ किंग्स, हायरार्की सिस्टम. द बॉडी दैट लास्ट टाइम इट वाज डजन 1614. और ये जो चीज़ हुई थी ना, दिस वाज द लास्ट मीटिंग वाज इन 1614, and now the year is 1789. Yes, more than 150 years, but there is no meeting to call representative of estates and held meeting to decide about the tax. Yes, on May 1789, Louis XVI called together an assembly of the Estates General to pass proposal for new taxes.
Louis 16 now want to be impose new taxes, so he called all generals of estates to pass proposal for new tax. A resplendent hall in the Versailles was prepared to host the delegates. एक बहुत ही शानदार, आई थिंक यहाँ पिक्चर दिया होगा, एक हॉल तैयार किया गया वर्साइल्स में. वर्साइल मतलब वो महल, वर्साइल्स एक जगह है फ्रांस में, ताकि वो जो डेलीगेट्स आए उनको होस्ट किया जा सके. द फर्स्ट एंड सेकेंड सी एस्टेट सेंड 300 रिप्रेजेंटेटिव ईच. अगर हम फर्स्ट और सेकेंड एस्टेट्स की बात करें तो वहाँ से 300 लोग आए थे रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे, वाइल द 600 मेंबर्स ऑफ द थर्ड एस्टेट, और थर्ड से अकेले 600 आए थे, क्योंकि ये टैक्स पेयर सोसाइटी ये थी, ये टैक्स नहीं भरते थे. हैड टू स्टैंड एट द बैक. और प्रॉब्लम ये थी कि थर्ड एस्टेट से इतने सारे लोग आए थे, सबसे ज़्यादा मेहनती लोग थे, इनको बैक में रखा गया, सबसे पीछे खड़ा किया गया. द थर्ड एस्टेट वर रिप्रेजेंटेड इट्स सॉरी Yes, the third estate was represented by its more prosperous and educated member. थर्ड जो एस्टेट थी वो जो उसके प्रॉस्पेरस एजुकेटेड मेंबर थे उनके जरिए ही रिप्रेजेंट की गई, क्योंकि उसमें पीसेंट, फार्मर्स, लैंडलेस, लेबर्स, इस तरह के सारे ही लोग थे. पीसेंट्स, आर्टिसंस एंड वुमेन्स वर डिनाइड टू एंटर द असेंबली. और उस असेंबली में पीसेंट्स को, आर्टिसंस को और वुमेन्स को नहीं बुलाया गया. However, their grievance and demanded are listed in some 40,000 letters which the representative had brought with them. जो थर्ड एस्टेट्स के 600 रिप्रेजेंटेटिव गए थे, उन सब 600 लोग रिप्रेजेंटेटिव के पास थर्ड एस्टेट्स के इन सारे लोगों की 40,000 लेटर्स थे, और वो उनके साथ भेजे थे कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को और अपनी चीज़ों को बता सकें. लेकिन यहाँ तो राजा सिर्फ और सिर्फ टैक्स के बारे में, अपना खजाना भरने के बारे में बात कर रहा था. यस. Voting in the estate general past had been conducted according to the principle that each estate had one vote. बात ये थी कि जो एस्टेट थी इनका एक वोट, इनका एक वोट, इनका एक वोट माना जाता था. आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझिएगा. तो कहने का मतलब है राजा को सिर्फ, क्योंकि ये दोनों लोग तो टैक्स देते नहीं थे, सिर्फ ये टैक्स देते थे, राजा को इनको अपनी तरफ मिलाना होता था, तो इनके और इनके एक वोट मिल जाते थे. तो 3:1 के रेशियो से राजा को कोई भी टैक्स पास करने में आसानी हो जाती थी. तो ये बेचारे फिर उसी हालत में आ जाते थे. तो इनका एक वोट, इनका एक वोट, इनका एक वोट. लेकिन इस बार क्या हुआ वो आप देखें. इस बार क्या हुआ ज़रा देखें तो. दिस टाइम टू लुई 16 वॉज डिटरमाइंड टू कंटिन्यू द सेम प्रैक्टिस. इस बार भी लुई 16 ने सोचा, क्योंकि 1614 में लास्ट टाइम मीटिंग हुई थी, उसको लगा आज मेरा काम भी बन जाएगा और मैं नया सिस्टम लागू कर दूंगा. बट मेंबर्स ऑफ द थर्ड एस्टेट डिमांडेड दैट वोटिंग नाउ बी कंडक्टेड बाय द असेंबली एज अ होल, वेयर ईच मेंबर वुड हैव वन वोट. अब उस थर्ड एस्टेट्स के लोगों ने ये कहा कि ये जो एस्टेट्स हैं ना, 1, 2 और 3 एस्टेट्स के, इसमें जैसे 300 लोग हैं, इसमें भी 300 है, और थर्ड वाले में 600 है, तो इन 300 पूरे को सबको वोट माना जाए, यानी कि जो 300 लोग हैं वो सारे लोग वोट दें, ये भी दें और ये भी दें. तो बेसिकली उसमें क्या था, उन लोगों ने ये कहा कि जस्ट वेट, आई थिंक देयर इज सम काइंड ऑफ confusion here. Demanding that now voting now be conducted by the assembly as a whole, where each member would have one vote. This was one of the democratic principles put forward by a philosopher like Rousseau in his book The Social Contract. Yes, मतलब जो जिनका एक एक वोट है तो उसको पूरे को वोट क्यों ना करवाया जाए. उससे पहले सिर्फ एस्टेट जनरल्स की ही राय ली जाती थी. तो सिंपल सी बात है कि कुछ पीपल यहाँ भी ऐसे थे कि जो राजा की बहुत सारी चीज़ों से सहमत नहीं होते थे. तो 300 का रेशियो भी अगर आप लेके चलेंगे, इसमें से अगर 100 लोगों ने भी मना किया, यहाँ से भी 100 लोगों ने मना किया, और यहाँ से 600 वोट जा रहे हैं, तो कहने का मतलब एक नॉर्मल सी काउंटिंग ये होती थी कि राजा के अगेंस्ट में मोस्ट ऑफ काउंटिंग जाती थी. तो जब डेलीगेट्स ये कह रहे हैं कि उनको 1 वोट दिया जाए, तो ये एक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल की तरह रखा गया, जो कि फ़िलासफ़र्स रूसो जैसे लोगों ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट में पहले भी कहा था. मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया भी था कि वो कुछ वोटिंग डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स की बात करता है. ये जो 1 वोट वाला सिस्टम आया है, आपने पॉलिटी में पढ़ा है, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू,
क्योंकि उसी की तरह फ्रांस में जो है यहाँ पे उस टाइम कैरिड आउट हो रहा है। तो ये रूसो की बुक है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। व्हेन द किंग रिजेक्टेड दिस प्रपोजल, अब इस प्रपोजल को किंग ने रिजेक्ट कर दिया। तो थर्ड स्टेट्स वॉक आउट ऑफ द असेंबली इन प्रोटेस्ट, और थर्ड असेंबली जो है वो प्रोटेस्ट करने के लिए वॉकआउट मतलब वहाँ से बाहर निकल गई। अब सिंपल सी बात, ये टैक्स तो वही सोसाइटी पे करती है, जब वही बाहर चले जाएंगे पूछा नहीं जाएगा तो वो विरोध तो अपना करेंगे। सिर्फ दो सोसाइटी मिलके अपना फैसला नहीं ले सकते। ओके, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द थर्ड स्टेट्स व्यू देमसेल्व्स एज स्पोक पर्सन फॉर द होल फ्रेंच नेशन। अब ये चीज़ बड़ी समझने वाली है। इन लोगों ने, थर्ड स्टेट्स के लोगों ने ये सोचा कि वो स्पोक्स पर्सन यानी कि आवाज़ बनेंगे पूरे नेशन की, क्योंकि हम ही वो लोग हैं जो इस देश की धरती को सींचते हैं, फ्लो करते हैं, अनाज उगाते हैं, सारी मेहनत करते हैं, टैक्स भरते हैं, पैसा देते हैं, तो हमारी आवाज़ को पूरे देश की आवाज़ माना जाना चाहिए। ऑन 20 जून दे असेंबल्ड इन द हॉल ऑफ एन इंडोर टेनिस कोर्ट इन द ग्राउंड ऑफ वर्साइल्स। ये टेनिस कोर्ट था एक वर्साइल्स में, वहाँ इकट्ठे होते हैं। दे डिक्लेयर देमसेल्व अ नेशनल असेंबली एंड रॉट टू डिस्पर्स टिल दे हैड ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्रांस दैट वुड लिमिट द पावर ऑफ द मोनार्क। और उन्होंने वहाँ डिक्लेयर किया अपने आप को किस तरह, नेशनल असेंबली की तरह, जो कि आज भी है वहाँ पे, जैसे अपना पार्लियामेंट है जहाँ पूरी कंट्री के एक जैसे तौर तरीक़ों से चुने हुए लोग भेजे जाते हैं। यानी डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल की अब फ्रांस में बात होने लगी थी, और उन्होंने इसी की कसम खाई कि जब तक वो ऐसा ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं बना देंगे जिसमें कि मोनार्क की पावर को कम कर देंगे, तब तक हम जो है वॉकआउट ही रहेंगे, और हम ही अब कंट्री की रिप्रेजेंटेशन मतलब क्या कहते हैं उसे, कंट्री की जो रिप्रेजेंटेशन है वो अब हमारे हाथों में। दे वर लेड बाय मिरेबू एंड एबेसियस, ये वो पर्सन्स के नेम हैं जो टेनिस कोर्ट में वहाँ मीटिंग हो रही थी। मिरेबू वाज बोर्न इन अ नोबल फैमिली बट वाज कन्विंस्ड ऑफ द नीड टू वे विद अ सोसाइटी ऑफ फ्यूडल प्रिविलेजेस। वो नोबल फैमिली में भले ही जन्मा था, लेकिन वो इस चीज़ को मानता था कि जो प्रिविलेजेस, फ्यूडल प्रिविलेजेस मिलते हैं सोसाइटी में, ये अब इनको दूर हो जाना चाहिए, इनकी नीड नहीं है। He brought out a journal and delivered powerful speech to the crowd assembled at Versailles. जर्नल एक अखबार की तरह होता है जिसमें कोई अपना लेख लिखता है, वो उसमें अपने पावरफुल स्पीचेस को डिलीवर करता था, और क्राउड जो होती थी उसकी भीड़ इकट्ठी हो जाती थी वर्साइल्स में, वो वहाँ बांटा करता था, अपने विचारों को फैला रहा था। यस, ये टेनिस कोर्ट की ओथ है। देखिए सब लोग हाथ किए हुए हैं, यहाँ पे लोग खड़े हुए हैं, यहाँ पे भी खड़े हुए हैं, और पूरी भीड़ की भीड़ है यहाँ पे। तो कहने का मतलब है ये टेनिस कोर्ट में सारे लोग ओथ ले रहे हैं कि वी आर नेशनल असेंबली, और ये क्या कहते हैं अब अपने आप को दिखा रहे हैं कि येस वी आर द नेशनल असेंबली एंड वी ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्रांस। एबेसियस ओरिजिनली ए प्रीस्ट रॉड एन इन्फ्लुएंशियल पैम्पलेट कॉल्ड व्हाट इज़ द थर्ड स्टेट। एबेसियस वैसे तो एक प्रीस्ट था, जो हमारे यहाँ ब्राह्मण होते हैं वैसे ही धार्मिक आदमी, बट वो एक इन्फ्लुएंशियल पैम्पलेट मतलब बहुत प्रभावशाली एक पैम्पलेट छापता था, उसने लिखा भी था, उसका नाम था व्हाट इज़ द थर्ड स्टेट। मतलब अपने ही लोगों के बारे में उसने बहुत सारी चीज़ लिखी, उससे वो चीज़ पॉपुलर हुई बहुत सारी। ओके, ये बेटा फ्रांस का मैप है, और ये इंसिडेंट्स हैं, एरो ये दिखाते हैं किस किस तरह से सारी चीज़ें हुई। ये पेरिस है यहाँ पे, और यहाँ पे जो जितनी भी घटनाएं हैं उनके बारे में बताया, लेटर ऑन हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। आप देख सकते हैं कि जो फ्रांस है वो स्पेन से, स्विट्ज़रलैंड से, नीदरलैंड से टच करती हैं उसकी बाउंड्री। While the National Assembly was busy at Versailles drafting a constitution, the rest of the France seethed with turmoil. जब नेशनल असेंबली यानी कि जो थर्ड स्टेट्स के लोग हैं वो वर्साइल्स में कॉन्स्टिट्यूशन बनाने लगे, तो जो बाकी के फ्रांस में इस तरह की जो मतलब समस्याएं थीं, वहाँ पे क्या कहते हैं ना, एक डिस्टर्बेंस जो है क्रिएट हो गया था। ए सेवर विंटर हैड मीन्ट अ बैड हार्वेस्ट, द प्राइसेस ऑफ ब्रेड रोज। एक तो इतना ख़तरनाक सर्दी होने की वजह से फसल अच्छी नहीं हुई, जो खाने पीने की चीज़ें उनके दाम बहुत बढ़ गए, बेकर्स जो हैं वो सिचुएशंस को नहीं संभाल पाए, सप्लाईज भी डाउन हो गई। स्पेंडिंग आवर्स इन अ लॉन्ग क्यू एट द बेकरी, क्राउड ऑफ एंग्री वुमेन स्टॉर्म्ड इन द शॉप्स। मतलब लाइन में घंटों घंटों लगे रहने के बाद बेकरी शॉप के बाहर उसके लिए, और क्योंकि फूड की शॉर्टेज है, जब वहाँ इस तरह की खबरें आती थी कि खाना नहीं रहा है, तो वुमेन्स जो हैं गुस्से में वहाँ पे सारी शॉप्स में घुस जाया करती थी, और इस तरह से अपनी गुस्सा को और अपने भूख को लेकर इस तरह से प्रदर्शन कर रही, यानी ये हालात हैं इस तरह के फ्रांस में, आप समझ सकते हैं।
एट द सेम टाइम द किंग ऑर्डर ट्रूप्स टू मूव इनटू द पेरिस ऑन 14 जुलाई। और उसी टाइम पर राजा ने ये ऑर्डर दिया कि सेना को जो है ट्रूप्स को मूव करना चाहिए पेरिस में 14 जुलाई को। दे एगिटेटेड क्राउड स्टॉर्म्ड एंड डिस्ट्रॉयड द बेस्टिल। और फिर वही घटना हुई जो आपने सबसे पहले एक पेज पे पढ़ी थी, जिसमें आपने बेस्टिल को देखा था, द पावर ऑफ द सिंबल ऑफ ईविल एंड द ईविल पावर ऑफ किंग। तो उसको लोगों ने घेरा, और वो जो आप एक स्टोरी पढ़ रहे थे कि 7,000 मैन एंड वुमेन विद आर्मर्स के साथ जाते हैं और वो बेस्टिल को तोड़ देते हैं और लोगों को फ्री कर देते हैं। ये वही घटना है फिर उस दिन की बेस्टिल वाली। यस, ऑन द कंट्री साइड मतलब विलेज में र्यूमर्स फैल जाती हैं विलेज टू विलेज दैट लॉर्ड ऑफ द मैनर हैड हायर्ड लैंड ऑफ ब्रिगेड्स हु वर ऑन देयर वे टू डिस्ट्रॉय द राइप क्रॉप्स। मैनर एक वर्ड आएगा, मैनर्स को आप समझेंगे कि मैनर्स कौन होता है। एक एस्टेट होता है और उसका लॉर्ड यानी मुखिया जो अपने मेंशन अपनी ज़मीन जायदाद के साथ वहाँ पे क्या कहते हैं खेती करता है। वो बड़े बड़े जो जमींदार जैसे अपने इंडिया में होते हैं। तो प्रॉब्लम ये हुई कि जब इस तरह की खबरें फैली और वो अपनी ब्रिगेड के साथ आ रहा है, वो जो पकी हुई फसल उसको ख़त्म कर देगा, उसको बंद कर दिया। कॉट इन अ फ्रेंजी ऑफ फियर पीजेंट्स एंड सेवरल डिस्ट्रिक्ट सीज होइज एंड पिच फॉक एंड अटैक चेटेक्स। अब ये एक नया वर्ड है। चेटेक्स क्या है ज़रा आप देखें तो चेट्यू बोलते हैं। ये एक स्टेटली रेजिडेंस होता है जो कोई किंग का या नोबल पर्सन का होता है, अटैक कर देना किसी उस पर, ठीक है। तो वो डरे हुए किसान और ये सारे सेवरल डिस्ट्रिक्ट्स के पीजेंट हैं, किसान हैं, ये आते हैं और वो चेटेक्स पे अटैक कर देते हैं। वो लूटेड ग्रेन्स और उन सबको लूट लेते हैं। बर्न डाउन डॉक्यूमेंट कंटेन रिकॉर्ड ऑफ मैन्योरियल ड्यू। मैन्योरियल ड्यू का मतलब हुआ बेटा यहाँ पे कि जो किसान थे, पीजेंट्स थे फ्रांस के, उनकी जो टैक्सेस के बारे में या उनके उधार लेन देन के बारे में जो डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड थे उनको जला दिया, और वहाँ से उन सभी बड़े बड़े जमींदारों फ्यूडल के यहाँ से वो फूड ग्रेन जो है लूट लेते हैं। ए लार्ज नंबर ऑफ नोबल फ्लड फ्रॉम देयर होम्स, मैनी ऑफ देम माइग्रेटेड टू नेबर कंट्रीज। और बहुत बड़े पैमाने पे नोबल पर्सन थे, वो अपने घरों से भाग गए। उनमें से बहुत सारे पड़ोसी कंट्रियों में माइग्रेट कर गए क्योंकि वो अपनी जान बचा के भागना चाहते थे। जैसे हमारे यहाँ से नीरव मोदी और विजय माल्या जैसे लोग भाग जाते हैं। ओके, यस। Faced with the power of revolting subject, Louis XVI finally accorded recognition to the National Assembly. अब जब उसको लगा कि जो पावर जा रही है हमारी और इस तरह से लोग रिवोल्ट कर रहे हैं, लुई 16 ने तुरंत रिकॉग्निशन मान्यता दे दी नेशनल असेंबली को, थर्ड स्टेट्स वालों को। ये जो वर्ड है ना मैन्योर एंड चेटेक्स और चेट्यू, इनको आप राइट करेंगे अपनी नोटबुक में। एंड एक्सेप्टेड द प्रिंसिपल दैट हिज पावर वुड फ्रॉम नाउ बी चेक्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। और वो इस चीज़ पर राजी हो गया कि अब उसकी पावर्स को ना, जो ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो आप बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही मैं उसके अंडर में मेरी चीज़ों की चेक होना या मेरी चीज़ों की रजामंदी तभी मानी जाएगी जब मैं असेंबली से डिस्कस करूँगा। इस तरह चीज़ों पर वो राजी हो गया। नाइट ऑफ 4 अगस्त 1789 द असेंबली पास द डिक्री अबोलिशिंग फ्यूडल सिस्टम ऑफ ऑब्लिगेशन टैक्सेस। और 4 अगस्त के दिन 1789 में असेंबली ने एक बिल और अपना एक नियम पास कर दिया कि जो फ्यूडल सिस्टम है, जमींदारी वाला सिस्टम है, लोगों को टैक्स पे करने के लिए ज़बरदस्ती की जाता है, उनको कोई ऐश आराम नहीं है और वो सिर्फ और सिर्फ कंट्री का सारे लोगों का बोझ ढो रहे हैं। ये सारे तरह के सिस्टम्स को एबोलिश कर दिया गया और टैक्सेस को भी इस तरह से फालतू चीज़ों को हटा दिया गया। मेंबर्स ऑफ द क्लर्जी टू वर फोर्स टू गिव अप देयर प्रिविलेजेस। और जो मेंबर थे बड़े बड़े घरों के और इस तरह के लोगों के, ऊंचे ख़ानदान के, उनसे भी कहा गया, उनको दबाव बनाया गया कि आप अपने सुख सुविधाओं को और ऐश आराम को छोड़िए जो आपको मिले हुए हैं, और ये जो टैक्स ना देने की परंपरा थी इसे ख़त्म कीजिए। तिथीज वर एबोलिस्ड, जो आपको याद है चर्च वाला टैक्सेस था, और जो लैंड थी चर्च वाला वो कॉन्फिगरेटेड, वो जो है अब हटा दी गई क्योंकि चर्च के अंडर में ही सारी ज़मीन आती थी। एज अ रिजल्ट द गवर्नमेंट एक्वायर्ड एसेट्स वर्थ एट लीस्ट 2 बिलियन लिबरेज। और जब इस तरह से ये सारी चीज़ें इंसिडेंट हुए तो गवर्नमेंट के पास 2 बिलियन लेबरीज आ गई। और इनमें से आपने पीछे पढ़ा था कि कुछ मिलियंस का बहुत सारा डेब्ट जो था फ्रांस के ऊपर था। ओके, सो दीज आर द बेसिक इंसिडेंट बिहाइंड द आउटब्रेक्स ऑफ रेवोल्यूशन। फिर आप देखेंगे कि फ्रांस जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कैसे कि कॉन्स्टिट्यूट होगा जो राजा को चलाएगा। मोनार्क किससे है? मोनार्क राजा से, एग्जीक्यूटिव से।
अगर नॉर्मल अगर आपको मैं सिर्फ पैराग्राफ समझाना चाहूँ तो आप देखेंगे कि एक जुडिशरी को बोला है, एग्जीक्यूटिव को बोला है, लेजिस्लेटर को बोला है, और ये आज प्रेजेंट टाइम में हर कंट्री, डेमोक्रेटिक कंट्री में ये आपको मिलेंगे। और ये उस टाइम फ्रांस में ये सारी चीज़ें हो रही थी। यानी एक जज होगा, जज को भी लोग वोट दे के चुनेंगे। मिनिस्टर्स, किंग होगा, किंग को वीटो होगा नेशनल असेंबली के पास जिसमें 745 मेंबर्स होंगे, और नेशनल असेंबली को चुनने के लिए इलेक्टर्स होंगे 50,000 मैन, वुमेन्स को नहीं रखा है, वो वोट करके उसको चुनेंगे। और ये कंट्रोल करेगी, लेजिस्लेटर कंट्रोल करेगी किसको? किंग को। नेशनल असेंबली कंट्रोल करेगी किसको? मिनिस्टर्स को। यानी हर एक चीज़ कंट्रोलेबल होने लगी अब। जैसे इंडिया में राष्ट्रपति तीनों सेनाओं से हेड है, प्राइम मिनिस्टर भी बंधा हुआ है। मतलब हमारे यहाँ कोई ऐसा सुप्रीम लीडर नहीं है कि जो सिर्फ अपनी अपनी चला सके, जैसे राजाओं के टाइम पे हुआ करता था। तो ये बेसिकली वोट जो होता था इलेक्टर्स का, ये एक्टिव सिटीजन्स थे 4 मिलियन में, ठीक है। ये भी इन्हीं को चुनते थे और ये भी इन्हें चुनते थे। पैसिव सिटीजन्स है जिन्हें वोटिंग के राइट नहीं थे, वो 3 मिलियन मैन थे। और वुमेन, चिल्ड्रन और यूथ जो बिलो 25 साल से नीचे थी, उनको भी जो है क्या कहते हैं, वोटिंग राइट्स के लिए उसमें ऐड किया गया बाद में। तो कहने का मतलब है ये वोट देना, कंट्रोलिंग, ये सब लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, मॉडर्न डेमोक्रेसी की जो बातें थी वो फ्रांस में स्टार्ट हो गई थी। इसीलिए बोला है कि फ्रांस अब एक कॉन्स्टिट्यूशनल, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सबको जो है पावर्स को बांट दिया गया। ओके। द नेशनल असेंबली कंप्लीट द ड्राफ्ट कमीशन 1791 में नेशनल असेंबली ने पूरा ड्राफ्ट तैयार कर लिया कॉन्स्टिट्यूशन का। मेन ऑब्जेक्ट था टू लिमिट द पावर ऑफ द मोनार्की, जो राजा है इसको कंट्रोल करना और इसकी पावर्स को लिमिट में कर देना। These power instead of being concentrated in the hand of one person were now separated and assigned to different institution। पहले जो एक ही हाथ में सारी पावर होती थी राजा के, अब उसको सेपरेट कर दिया गया डिफरेंट इंस्टीट्यूशन। जैसे लेजिस्लेटर बनाया गया जहाँ पे लोग चुन के आते थे, एग्जीक्यूटिव बनाया गया जो आज हर प्रेजेंट डेमोक्रेसी में मौजूद है, और जुडिशरी, जज, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये सारी चीज़ें। दिस मेड फ्रांस अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। ये इंसिडेंट की वजह से ही फ्रांस को हम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बोलते हैं। अगर क्वेश्चन भी आए हाउ फ्रांस बिकेम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, अगर ये क्वेश्चन आए हाउ फ्रांस बिकेम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, तो ये ही आपको लाइंस को पॉइंट्स में करके लिखना है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट और 5 पॉइंट अगर लॉन्ग में आता है तो। ये पैराग्राफ के बाद जो ये डायग्राम है, ये पॉलिटिकल सिस्टम है 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। कौन कौन लोग वोट दे रहे हैं, जुडिशरी अलग, लेजिस्लेटिव अलग, ये सारी चीज़ें अलग। तो कहने का मतलब है यही सारी चीज़ें थी, और एक नया वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया। लेटर ऑन डिक्लेरेशन के बारे में पढ़ेंगे राइट्स ऑफ सिटीजन और मेंस में, बट ये हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए क्लास हम सिर्फ इतना ही रखेंगे, और जो रिवीजन है वो करते रहिए। पीछे हमने करा दिया है आपका सारा रिवीजन, अब जो नए चैप्टर्स हैं वो कंटिन्यूली आगे बढ़ते रहेंगे। ओके क्लास, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।